So, hello everyone, welcome to our yet another episode. We are your hosts and we are from the Real Talk. Yeah. Okay, So this would be our fourth episode that we are shooting, and as you can see, behind us, this is the same background that we had, you know, in the podcast that we had before. So as you guys can assume, अभी तक हम इनके घर पे ही हैं अंकुश भाई के. it's been last 4 days and he is not, allowed us to let go. So, let's see. So basically उन्होंने हमें घर में कैद किया हुआ है भाई. So, this is our, उनकी बीवी नहीं है घर पे तो कह रहे हैं भाई. this is a rescue call. Yeah. So basically हमारे प्लीज मुझे मेरे घर जाना है. Jokes aside, guys, so you might have guessed that why are we here, and as we promised, we have that guest for today, which we have promised, and we are going to talk a lot about cricket. So stay tuned, and you are going to see a lot in our next coming minutes. Before that though, I really want to discuss something जो मैंने सब पूरे हफ्ते वो किया है. Yeah, as Yeah. our like a ritual, we do what we done for this particular week. Yeah. So we are going to do that. So firstly, I would like to ask my really good friend Rohit over Okay. here. Yeah. So what did you do this week? Well, actually this week I actually worked a lot. You worked a बहुत lot. ज़्यादा काम किया है मैंने इस पूरे Are you talking about office or your personal life? both, even to my YouTube channel Mhm. or even to the Instagram channel that I have Mm-hmm. or even to my actual work that I do. Mhm. बहुत काम किया भाई मैंने इस पूरे हफ्ते, and I really didn't watch anything भाई. This That- time I actually didn't watch anything भाई, बिल्कुल भी नहीं. I mean, that is really hard to believe because you have a review channel, so you must have Yes. watched something. Yes, just think about it. मैं कैसे आइडियाज के साथ आ रहा हूँ when me myself haven't watched anything. कितना irritating होता होगा तुम्हारे लिए, तुम सोचो. But हाँ, I rewatched a show बहुत टाइम बाद. मैं आपको बता भी रहा था. I started watching which show? Again, do you remember? I mean, you know my memory. हाँ. You have to Uh, recall. हाँ. Which disease did you encounter this week? क्या बोल रहे थे आप? क्या है आपको? Oh, क्या डायग्नोस किया आपने? brain सेल्फ fog. डायग्नोस. Brain fog. ब्रेन फॉग है भैया इनको, बिकॉज ये सोते नहीं है तो इनको लगता है कि इनको ड्रीम्स और रियलिटी में फर्क होना बंद हो गया है, चीजें भूल जाते हैं. It's not like sote nahi hai. I think it's because our lifestyle, what it has become. We don't have a proper sleep schedule and we don't have a proper diet plan. That, and apart from that, I think yes, sleep schedule is also there. So yes, let's put that aside. Actually, I watched Rick and Morty again. I watched the last 2 seasons again. और for some reason मुझे भी लगता है मुझे भी सेम बीमारी है वो वाली. Okay. बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैंने 2 सीजन नहीं देखे हैं लास्ट वाले. मुझे लगा था मैंने 5 सीजन तक ही देखा है शो. Alright. एंड आफ्टर दैट आई थिंक मैंने ड्रॉप कर दिया था, मुझे लग रहा था. Mhm. बट इट टर्न्स आउट मैं एपिसोड देख रहा हूँ और हर एपिसोड के साथ आई एम रियलाइजिंग ओ ये तो मैंने पहले देखा हुआ है, ओ ये मैंने तो पहले देखा हुआ है. और भाई ये पूरे लास्ट एपिसोड तक देखा है. मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल एपिसोड जो मैंने पहले नहीं देखा होगा उसके अंदर. Mhm. एक्चुअली आई ड्रॉप द शो बिकॉज जो ओरिजिनल क्रिएटर था रिक एंड मॉर्टी का, Mhm. जो धोनी की आवाज़ देते हैं एक्चुअली उनको किन्हीं चार्जेस की वजह से उनको निकाल दिया गया था उसके प्रोडक्शन से. ठीक है, तो उनकी जो आवाज़ है चेंज हो गई है. वो अभी जो नया लास्ट सीजन आया, सीजन 7 आया, राइट. Okay. सो इवन दो मतलब तुम्हें फील नहीं होता ऐसा बिकॉज द न्यू आर्टिस्ट जो भी इनको आर्टिस्ट मिला है ना, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. बट एट द सेम टाइम यू एक्चुअली डू मिस दैट फ्लिंग इन दैट, बिकॉज जो उनको वॉइस देते थे एक्चुअली वही उस शो पूरे शो को लिखते भी थे. तो आप डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियरली फील कर सकते हो. इट सीम्स लाइक जैसे आप अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है आपने, राइट. सो ऑफ कोर्स इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा है, तुम्हें भी देखना चाहिए. ठीक है, जो तुम बोलते रहते हो ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी भी बैठ के तुम ये पॉडकास्ट से देख रहे हो. Plus House of Dragons. हाउस ऑफ ड्रैगन एज वेल. आई थिंक यू गाइस शुड वॉच दैट शो. ठीक है, आई नो तुम्हें सेकंड सीजन बहुत बोरिंग लग रहा है उसका, बट दैट्स अनदर टैंजेंट दैट विल गोना गेट. Hang on there, you'll Huh? find it interesting. ठीक है, बट आई वुड से गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह जैसे 5th सीजन तक एवरीथिंग वाज वेरी गुड, Mhm. और अब 6th सीजन तक आते ही यू कैन फील द डिफरेंस, राइट. डायलॉग्स आपको बहुत ज़्यादा वीक लगने लग जाते हैं, राइट. आपको लग रहा है कि राइटिंग क्या है, टीरियन ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें क्यों कर रहा है ना, बिकॉज वो तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर था. Mhm. तो सेम मैंने फील किया जंपिंग फ्रॉम 6th to 7th सीजन. बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा मुझे. इवन दो आई वुड से शिनानिगिरी जो है उसकी भाई रिक्की वाज देयर ओनली कि हाँ भाई वो कुछ भी हो रहा है उनके कहते दुनिया में. बट एट द सेम टाइम येस यू कैन फील दैट आई वोंट से उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बना दिया. इट्स स्टिल एन एडल्ट कार्टून.
बट एट द सेम टाइम आई वुड से उन्होंने टोन डाउन कर दिया बेसिकली आई थिंक, बिकॉज प्रीवियसली दे यूज्ड टू गो ऑल आउट, ठीक है, कि जेरी on the jokes. बहुत बुरे बुरे, लाइक देयर वाज दिस एपिसोड जिसके अंदर जेरी कहता है मोटी का पापा होता है, मोटी आपने देखा होता होगा थोड़ा सा रिक एंड मोटी, राइट? तो जेरी जो मोटी का पापा होता है तो वो फॉर्चून वहाँ पे जाते हैं, वो पांडा एक्सप्रेस करके अमेरिका में एक बहुत बड़ी चाइनीज फूड की चेन है, राइट? तो वो उधर जाते हैं एक बार वो खाना खाने के लिए, तो उधर वो मिलती है फॉर्चून कुकीज़, चाइनीज़ फॉर्चून कुकीज़, आपने सुना होगा। तो कहते हैं अगर उसको खोलो तो तुम्हारा फ्यूचर बताती हूँ। तो फॉर सम रीज़न उसकी फॉर्चून कुकी में लिखा होता है दैट यू विल गोना हैव सेक्स विद योर मदर। यस, उसकी फॉर्चून कुकी में ये लिखा हुआ था। तो अब ये जोक नहीं है, पूरा एपिसोड इस बारे में है दैट ही इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम हिज मदर, जो कि इसके घर पे विजिट कर रही हैं, ठीक है, बिकॉज ही थिंक्स वो एक्सीडेंटली इंटरकोर्स कर लेगा गाइस, ठीक है। और ये पूरा एपिसोड इसी बारे में है, ठीक है। तो वो अपने जेनिटल्स के ऊपर टेप लगा रहा है, राइट, अपनी मम्मी से दूर दूर भाग रहा है कि वो चाहता नहीं हो गलती से अपनी मम्मी के साथ कुछ गलत काम कर दे, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, जो फॉर्चून कुकी होती है वो एक्चुअली किसी एलियन के वॉमिट से बनी होती है, पेट में जाके कुछ होता है उससे बनी होती है। तो वो गलती से जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 100% कर देता है हर फॉर्चून कुकी की वो। तो जो वो चीज सच होगी, सोचो। I still have not overcome the first sentence, so let me Just think about it, process guys. that. ऐसा था पहले वो show. Don't think about guys. I mean, don't think about it, ठीक है? Yes, please don't. But at the same time, मतलब शो के बारे में सोचो, कितना fucked up show है भाई वो, कितना fucked up show है वो। Let's just leave this topic here. I cannot think about it or talk about it anymore. Let's So, just yes. talk about what I did Yeah. this week. Yeah, sorry. I watched a series called Sweet Home. Yes. I don't know how many of you have heard about it, but it's a Korean series and it was nice. It was not that bad. I also watched that movie. Forgot the name. Kill? Yes. Yes. I watched that movie called Kill, and apart from that, what See, about that Traffic Man? Sorry to cut you off there, but see, I'm a better friend because I even remember इन्होंने कौन सी movie देखी थी, because he told me about it. Tuning. Really want to talk about it, man, because actually we were talking about this topic earlier as well, even before we started recording this podcast, right? So I mean, the headline of it is India need to learn a little, traffic sense for sure. I think etiquettes बिल्कुल नहीं है हम सब में when it comes to traffic rules, ठीक है? Apart from our frustration, we saw the video of Gurgaon. I mean, where the car was coming from the wrong side and the biker hit that car. And that guy just died on the spot. Yeah. ठीक है। And at first I was thinking भाई वीडियो देखिए, because मुझे सिर्फ वीडियो देखा था, मैंने कैप्शन नहीं पढ़ा था, तो I thought ये शायद बाइकर ही है जो ज़्यादा तेज कार चला रहा है, but then I realized ना, बाइकर ज़्यादा कार तेज चला रहा है? नहीं, सॉरी, बाइकर ज़्यादा तेज चला रहा है, ठीक है, but then I realized कि नहीं, कार ही रॉन्ग साइड से आ रही थी, ठीक है। Then there was this other incident जिसने कहते हैं रेलिंग में घुसा दी थी, राइट, उसकी पूरी कार के पीछे से वो निकला हुआ है। तो आई थिंक ये चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं। I mean, not only the videos, we face this on a daily basis. I mean, we commute through our two-wheelers. Yeah. So we face this. I mean, this other day I saw, a proper four-way highway hai, right? Just because the person doesn't want to go through a 100-meter, U-turn, they came through the wrong side, right? And मैं आराम से चला रहा हूँ and I was just, jamming to my own ears and I was listening to a song. और सामने से गाड़ी आ रही है and I was like, where is this coming from? Or it was all of a sudden, I mean, anything could have happened, I mean, to be honest. So, yeah. I think actually me myself I live in Chandigarh, okay, so हमारे यहाँ के भाई traffic rules are very world famous, ठीक है। Yeah. I can So understand कि that. that you'll have to drive in a very certain manner, इतनी ही speed पे करना है, बहुत hefty हमारे fines होते हैं। तो when it comes to Chandigarh, 99% of the people drive and ride in a very safe manner. I think that is the only thing, because I think apart from Chandigarh, because let's see, I mean, we are living in Tri-City right now, right? So Tri-City की अगर बात करें, Chandigarh में rules are very strict. But as soon as you get out of Chandigarh And Mohali, Panchkula, I mean, and rules are Zirakpur, just- yes. nobody cares about it. So guys, for some reason daily I'll have to go to Zirakpur. Okay, there is actually my mom works in Zirakpur, so I had to drop her there every single day. Okay,
So what happens as soon as I, you know, Enter. enter Zirikpur, it seems like a very different world. जैसे ही आप सिटी ब्यूटीफुल के साइन से आगे जाते हो, ठीक है, वो सिटी बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं रहती है. You'll see XUV coming towards you हाँ. on the wrong side. और आप सही जगह पे जा रहे हो, यू आर गोइंग ऑन द राइट वे ओनली, ठीक है, बट आपकी तरफ से ट्रैफिक ऐसे भी नहीं आ रहा है दैट देयर इज अ सिंगल कार कमिंग योर वे, देयर इज अ होल ट्रैफिक कमिंग योर वे, इवन दो उनको देख के कभी कभी लगता है शायद मैं गलत चला रहा हूं, मैं गलत तरफ से आ रहा हूं. मैं वैसे कहने ही वाला था कि समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं रॉन्ग साइड तो नहीं चल रहा, because सारी गाड़ियां मेरी तरफ मैं आ रही पीछे हैं। देखता हूँ कि मैं तो नहीं गलत चल रहा हूँ, वो अच्छा, फिर देन आई रियलाइज कि नहीं भाई ये चल रहे हैं. चलो ठीक है, ट्रैफिक इज मतलब अपनी जगह पे ट्रैफिक, कोई बात नहीं. That was our frustration, I mean, to be honest, because we were talking about this for the whole week. हाँ Yeah. भाई बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ उस चीज को लेके मैं. और ऐसा भी हो, चलो ठीक है, देयर आर यू नो कहते हैं बाइक्स और कहते हैं कार्स कमिंग आवर वे, इवन साइकिल्स, कोई बात नहीं है, ठीक है, यू कैन सी देम. व्हाट पिसेस मी ऑफ द मोस्ट इज दैट बीच में लोग भी आ जाते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं हर कभी. रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई वहां पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है, लेजिट रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, भरा हुआ ट्रैफिक है, By giving you a hand. बाय गिविंग अ हैंड, और आप आ रहे हो 80 की स्पीड से, ठीक है, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू स्टॉप एंड नॉट टू किल देम, बट आई एम गोना किल देम नाउ. And at the end of the story is that we don't care about the people who are crossing the road, and we have done it. Actually, I was just watching this whole documentary about, you know, how good American, you know, traffic sense is. ठीक है, I don't know if you guys have seen it in the movies or even in the news. ठीक है, American वो even there are मतलब miles and miles लंबा ट्रैफिक लगा रहेगा उधर, ठीक है, but people ऐसे नहीं करेंगे मैं इसको निकल के आगे दे दूँ. So मंगल ही है ना शायद वो जो यूट्यूबर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मोहक है उनका चैनल, मुझे इतना पता है. तो बेसिकली ही मेड दिस वीडियो अबाउट इंडियन ट्रैफिक ओनली, इन विच ही एक्चुअली मतलब बताते हैं अपनी ऑडियंस को कि यू नो हमारे इंडियंस की दिक्कत क्या होती है. इंडियंस की दिक्कत होती है हमें उससे आगे निकलना है. किससे आगे निकलना है? हमें जो अपने सामने वाला है हमें उससे आगे निकलना है. आप चाहे जैसे मर्जी निकलना हो मुझे उससे आगे, Whether it's wrong, right, whatever it is. हाँ, चाहे मैं टाइम पे हूँ, चाहे मैं टाइम पर ना हूँ, मुझे उससे आगे निकलना ही है, ठीक है. I think overall we are lacking patience यस, on road. बहुत ज़्यादा, कि हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा जल्दी जाएंगे, ठीक है, पहुँच जाएंगे, बट एक्चुअली हम सारे ही लेट हो रहे होते हैं. Or I mean, even though you are late, man, if somebody's life is worth दैट 10 मिनट्स भाई, आई डोंट थिंक भाई कोई फायदा होगा. और 10 बॉस की एक minutes दिन में गालियाँ सुन लेंगे, but हाँ, I हाँ. don't think somebody's life is worth more than that. सो देखो, ये तो once in a I- while when you are in an emergency, उल्टा बोल दिया मैंने. हाँ, once in a while whenever you are in an emergency that could be understood. ठीक है भाई, it's a you know emergency, that is the reason we are doing it. But चलो ठीक है भाई, you are on time, तुम्हें पता है तुम 10 मिनट में पहुंच जाओगे, इवन अगर आप ट्रैफिक के अंदर भी हो, राइट. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुशिंग बैक भाई. अगर कोई हॉर्न मार रहा है तो तुम उससे भी खुद खिंच रहे हो, ठीक है, तुम सामने वाले को मार रहे हो, तुमसे खिंच रहा है. और ऊपर से कोई रॉन्ग साइड आता है, वो तुम उसको साइड नहीं देते कि रॉन्ग साइड से निकल जा, एंड दे गेट एंग्री विद यू. हाँ, कि भाई तूने मुझे साइड क्यों नहीं दिया यार, ठीक है. और आपने वो तो बहुत देखा ही होगा. दी अदर डे आई वाज विद माय फ्रेंड्स, ठीक है, क्या हुआ, हम थे 46 की मार्केट में, सेक्टर चंडीगढ़ में. व्हाट हैपेंड देयर इज, सो ये थार वाला है, ठीक है, द सेम थिंग दैट हैपेंड विद यू, ठीक है. इधर थार वाला है, इधर सेंटर वाला है, ठीक है. अब थार वाला आ रहे थे पार्किंग से निकल के, सेंटर वाला पार्किंग में लगाने जा रहा है. अड़ गए हैं, ट्रैफिक इकट्ठा हो जा रहा है, और क्या आर्गुमेंट हो रहा है उनके बीच में कि तू हटेगा या मैं हटूंगा. हम वहाँ पर डोसा खाने गए थे, हमने डोसा खाया, पूरा डोसा खा के उसके बाद 10 मिनट देखा भी है उसको, देन पुलिस वाला आया है उसको हटाने के लिए वहाँ से, और इवेंचुअली थार वालों को पीछे करनी पड़ी, ठीक है. सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ फेस कर रहे हो, ठीक है. इतना ध्यान दे रहे हो उस बंदे पे भाई, जिसके पास, चलो वो भी बेल रहा है, तुम भी बेल रही हो, ठीक है, बट तुम्हारे पास कहाँ से इतना टाइम है यार, कहाँ से, मतलब वो एक बात है ना, मुझे लगता है एक एरोगेंस भी बहुत है यार हमारे इधर, ठीक है, कि भाई शान रख रहे हैं मुझे, भाई शान उसको दिखाया क्या करेगा 10 मिनट में. वो अपने काम से point निकल of जाएगा, it. तुम अपने काम से निकल जाओगे. उसको तेरा नाम नहीं पता, तेरे घर का नाम नहीं पता भाई, वो तुझे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा जिंदगी में, बट नहीं, मुझे इससे दिखाना है कि मैं इससे बड़ा हूँ. So guys, from all this, you know that how frustrated are we with this traffic right now. And मैं nowadays, माँ बहन की गाली नहीं दे रहा हूँ, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस. let me stop him from doing that. But we won't forget our promise. We have our guest over here, and he will be arriving soon on this very sofa, and we'll talk about a lot about cricket.
So guys, after having a lot of arguments about our sitting plan, we have Ankush here. Meet Ankush, our first guest for the podcast, and we are really happy to invite the guest. To be honest, I was really bored, talking to. Rohit all the time. Actually, he just said that, but उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोलते हैं. But yes, now we have Ankush. Actually, उनको बीच में बैठना नहीं है, क्योंकि उनको बीच में किसी ने बोल दिया था कि बीच वाली तो. So अब उनकी थिंकिंग वही हो चुकी है. It is the reason अब वो साइड में बैठे हैं और सारा फोकस मैं खा रहा हूँ, even though I'm not the guest. So yes, अंकुश जी. और मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, to be honest. He's going to be a little baby. मैं यहाँ पर माइक का काम करने वाला हूँ भाई. So we'll teach this baby of ours how to play and what are the rules of cricket. ठीक है भाई. एक ओवर में कितनी बॉल होती है? बॉल तो एक ही होती है, 6 बार डालते हैं. बॉल तो एक ही होती है, 6 बार डालते हैं इसके अंदर. अरे चलो. Yes. So we do have some questions that we have made. Actually he's gonna ask him. ठीक है, मेरे पास तो क्वेश्चंस है नहीं, मुझे क्रिकेट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है. ठीक है, इन्होंने मुझे बोला था कि फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ लियो और ये पता कर लियो. मैंने उनके बारे में पता कर लिया, बस मुझे इतना पता है. वो भी ऑफिस के बीच में. So kudos to his dedication first. Yes, and I was super busy. And let's ignore him and we'll talk about it. So Yeah. आप क्या सोचते हो करंट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के बारे में? सोचना क्या है, वो तो इंडिया का ही है. इंडिया का ही है, बट वो तो बदला ले रहे हैं. जैसे इंडिया मतलब जो हिंदू के साथ वो चल रहा है वहाँ पे. देखो बांग्लादेश टीम जो है बहुत अच्छी टीम है. इफ यू सी पाकिस्तान को उन्होंने मतलब बढ़िया हराया है. ठीक है, एक टॉप की टीम को हरा के आए हैं. पर इंडिया जो है उसका अलग ही लेवल है, उसका अलग ही हो रहा है. आई मीन ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं वो, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ ही हमारी ऐसी अच्छी है कि वो खेल सकते हैं उनके साथ. करेक्ट. मतलब वी आर प्लेइंग. मतलब इंडिया की टीम ऐसी है कि उसके एक मिनट. ये बेंच स्ट्रेंथ क्या होती है? Okay, cut to our baby knowledge over here. So bench strength is हमारे जो प्लेइंग 11 है, जो प्लेयर्स ग्राउंड में होते हैं वो तो खेल ही रहे हैं, लेकिन हमारे सब्स्टिट्यूट्स जो हैं दे आर इवन स्ट्रॉन्गर कि वो भी उस टीम को खेल सकते हैं. अच्छा जी. सो इफ वी टॉक अबाउट राइट नाउ ना, आवर टीम इज दैट स्ट्रॉन्ग कि हम 3 अलग टीमें बना सकते हैं एंड दे कैन प्ले डिफरेंट फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अच्छा जी, इतनी स्ट्रॉन्ग. BCCI मैन, रिचेस्ट बोर्ड ऑफ वर्ल्ड. डू यू नो रिचा? अमित शाह, आई नो, मोटा भाई के बच्चे हैं, लड़के हैं वो. बस. हाँ अमित शाह इज मोटा भाई. हाँ. जय शाह इज बच्चा ऑफ मोटा. हाँ. अमित शाह ये लड़के हैं. So, and most of all, he has recently become the chairman of ICCI. not BCCI. Yes. So, those of you who don't know what is ICC, ICC is International Cricket Council. Is it ICC or ICCI? ICCI is the bank, man. Come on, Okay. don't make a blooper of yourself. Damn, man. Okay, so we were talking about India versus Bangladesh. So yes, our team is playing good, and yes, we are performing good. I wanted to talk about that. We have lost like 6 wickets, I guess, in the first session, and after that, Jadeja and Ashwin made the good partnership. So, what do you think about the partnership that they've made? So Ashwin was playing in his home ground, man. Okay, Chennai is his home ground where he has played right from his childhood. So he knows in and out about that ground, and I think that's something which played, huge role creating that, build that innings and getting India out of that, Right. situation. You talk. Putting India in that situation where we have already won the first session, we could have, given follow up to Bangladesh, but due to, अभी बहुत गर्मी है, तो इसीलिए रोहित शर्मा ने अच्छा डिसीजन लिया कि बैटिंग करने खुद आए. एंड यू कैन सी द करंट सिचुएशन, दे आर प्लेइंग एग्रेसिवली. Right. Okay, so that they can close this test on third day, by third day, and then they can go for some marine drive or beaches. for 2 जल्दी days. खत्म हो जाता है. कैसे? If you So bowl it's maximum for 5 days. इसमें कि दोनों टीम्स जो है 2 बार इनिंग्स बारी लेती बारी है. आती है. हाँ. तो वो 5 दिन जो मैक्सिमम है, आप उसको 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो. अगर आपने सबको एक साथ ऐड कर दिया तो ऐसा भी होता है. ठीक है, तो मैक्सिमम 5 दिन चलता है, मिनिमम तो आप 1 दिन में भी खत्म कर ऐसा हुआ है कभी एक दिन में सकते हो. खत्म? होता है. होता है. I mean, एक दिन का मैंने सुना 2 दिन में तो खत्म हुआ है मेरे सामने. And apart from that, अश्विन शायद इसलिए बच्चा खेला, उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे, करेक्ट. उसके दादा आई गेस वहाँ पे थे, and so that was, I mean, kind of motivation that worked out for him. और होम ग्राउंड था तो वो एडवांटेज था ही उसके लिए. बट ये तो था कि हमारी पार्टनरशिप कितनी अच्छी बनी जडेजा और अश्विन की वजह से. बट हमारा टॉप ऑर्डर
बिखर गया और वो काफी टाइम से हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं मतलब इंडिया एज आई सेड उनका प्लेइंग 11 ऐसा है कि अभी पहले वाला डर नहीं लगता कि मतलब पहले 4-5 विकेट चले गए तो ऐसा लगता था अब गेम खत्म, पर नहीं है 5 विकेट चले गए तब भी हमें ऐसे होता है कि अश्विन पड़ा है, जडेजा है, अक्षर पटेल भी खेलता है, तो फिर तो और डेप्थ आ जाती है बैटिंग में। तो अभी वो डर नहीं लगता, अभी लगता है वी आर इन सेफ हैंड्स, चाहे मुझे लगता है कोई विकेट जल्दी चली भी जाए वी आर विल स्टिल परफॉर्म। जैसे आप बोल रहे थे पहले कि उनका एग्रेसिव अप्रोच है, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका अप्रोच ही वो कि हम एग्रेसिव जाएंगे, टॉप ऑर्डर अटैक ही करेगा, अगर आउट हो गया तो हो गया, नीचे वाले संभाल लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो आई मीन दैट इज गुड ओनली। नहीं वैसा नहीं है, मतलब पहली इनिंग में अगर आप देखोगे वो अग्रेसिव नहीं खेल रहे थे, पर बांग्लादेश ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी। दैट इज कमेंट। उनका जो बॉलर था वो नाहिद राणा करके है, ठीक है, तो वो इन यू कांट बिलीव वहां पर 35-36 का टेम्परेचर, इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी के साथ, एंड ही वाज कंटिन्यूअसली बॉलिंग 140 Ks द एंटायर डे। उसने 18-19 ओवर उसने करे थे पूरे दिन में, और 19 नहीं, एक स्पेल नहीं, पूरे दिन में उसने 19 ओवर करे थे, और 19 ओवर में हार्डली कोई 1 या 2 बॉल होगी जो 140 से कम थी। वो 140 किलोमीटर कांस्टेंट कर रहा था, ऊपर ही डाल रहा था कांस्टेंट। हाँ, इतनी गर्मी में किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे बांग्लादेश वाले पहली इनिंग में। बट इफ यू सी सेकंड इनिंग, वो उनके अब शोल्डर्स डाउन है, बिकॉज दे नो कि 250 रन की लीड है, प्लस नहीं बचा पाएंगे वो टेस्ट को, सो दैट्स व्हाई कोहली आउट हो गया। आपने कोहली का डीआरएस के बारे में देखा क्या इशू हुआ था? नहीं, मैंने नहीं देखा क्या हुआ था। हम इस बारे में एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने वो मिस कर दिया था कि जब कोहली आउट हुआ था। सो मैंने वो देखा था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि कोहली का बैट लग के पैड पे बॉल लगी थी, बट उसको रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि बहुत माइनर एज था, एंड उसने डीआरएस नहीं लिया। उसने गिल को पूछा था कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, उसने मना कर दिया। जब वो बाहर चल गए तो रिचर्ड कैटलब्रो जो है वो भी हंस रहा था कि इसने डीआरएस नहीं लिया, और जब वो नॉट आउट आ रहा था उसके ऊपर, जब वो ऐसे देख रहे थे रिप्ले, एंड उसके बाद रोहित भी बहुत वो गुस्सा हो रहा था कि इसने डीआरएस क्यों नहीं लिया, एंड व्हाट इट वाज रियली अ ब्लंडर। ऑल्दो इंडिया इज इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, बट स्टिल कोहली और खेल सकता था, मुझे लगता, आई बिलीव। अरे सेम एक सिचुएशन ना कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी हुई थी, मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, सीपीएल ना, ठीक है, सीपीएल में हुई थी। उसमें आज क्या पता था, चला मुझे। हाँ, इमाद वसीम खेल रहा था वहां पर, और सुनील नारायण बॉलिंग कर रहा था। अभी कल के मैच की बात है, उसकी बात थी, उसके क्या है, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो उनके ट्रेंड नारायण, कोलकाता फ्रेंचाइजी का जो तो उसने बॉल करी उसको, तो मतलब वो प्लम फ्रंट में आ गया, तो अंपायर ने उसको मतलब आउट दे दिया। तो इमाद वसीम खेल रहा था, उसको पता था निक लगी है, एज लगी हुई है उसकी, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डीआरएस ले लिया। ओके, अब थर्ड अंपायर ने जब रिप्लेस देखी, इट वाज क्लियरली विजिबल कि वो एज लगी हुई है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके पैड पे जा रही है, बट फिर भी उसने आउट दे दिया। मतलब इतना उसको सुना के जा रहा है अंपायर को कि भाई डिसीजन कर लो रिवर्ट। इट वाज डिस्प्लेइंग ऑन द बिग स्क्रीन कि वहाँ साफ दिख रहा है कि भाई इसको लग के अंदर गई है, फिर भी उसने आउट दे दिया और वो बाहर चला गया। और आप कहती उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बाहर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद जब अंपायर ने उसको रिप्लेस दोबारा देखी, देन दे रियलाइज्ड कि नहीं, उन्होंने गलत डिसीजन दिया है, तो उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया उस डिसीजन को। लेकिन तब तक वो बाहर चला गया था, उसकी फॉर्म भी तो खराब हो गई है ना, उसका ग्राउंड से बाहर चला गया था। तो एज पर रूल्स, तो जो पुलार्ड था, अब वो ही वाज नॉट एग्रीइंग कि एक बंदा जो बाहर चला गया, यू कैन नॉट कॉल दैट पर्सन बैक। करंट आईसीसी रूल्स तो बिकॉज़ दे वर नॉट श्योर कि अभी रूल क्या है। सो मतलब इतना क्योस था 10-15 मिनट वहां पर कि सारे कोचिंग स्टाफ, सारे थर्ड अंपायर, रेफरी एंड ऑल सारे आगे थे ग्राउंड में, दे वर नॉट प्लेइंग इवन ए सिंगल बॉल। और तब तक क्या था कि फिर फाइनली 15 मिनट के बाद दे फिगर्ड आउट कि एज पर न्यू रूल दे कैन कॉल एनीवन आउट, इवन के वो पवेलियन में भी जा चुका है तब भी। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट हो रहा है, राइट? तो हाउ कैन दे बी कंफ्यूज्ड about the rules? So what happens is ICC जो रूल लॉन्च करता है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू होते हैं। Okay. There can be certain rules जो आप अपने डोमेस्टिक लीग में अप्लाई करो। आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे वाइड का था, अभी आईपीएल आपने देखा होगा, क्या वाइड में भी डीआरएस ले सकते थे? You can challenge a wide offer. चैलेंज अ वाइड डिसीजन है। Yeah. अच्छा जी, हाँ, ठीक है। तो ये लीग्स के डिसीजन भी होते हैं कि आपको है कि आपको अडैप्ट करने तो ठीक है, नहीं करने तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मैच में आईसीसी के ही उनके लागू होंगे। ओके। So yeah, that was it. फिर आईसीसी क्या है, आप नए रूल्स भी तो बात करने जा रहे थे ना आप? आई रेड हिज स्क्रिप्ट, हाँ बोलो। So yeah, there are some rules which ICC has recently launched as well. One of which was, I think it was the over
60 सेकंड्स के ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज गोना बी अ पेनल्टी। राइट, सो Right. लेट्स से कि मैं एक ओवर डाल रहा हूँ और बंदा दूसरा ओवर डाल रहा है, तो उन दोनों के बीच में 60 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। करेक्ट, दैट वाज दैट। सो दैट्स राइट। उसके अलावा भी आई गेस कुछ चेंजेस हुए थे। देयर वाज अनदर चेंज इन द सब्स्टिट्यूट आई गेस, जैसे कि वो कितने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, है ना? What are the other rules then? You must have. I'll pass on that book to you. ठीक है, rules, cricket rules. So this cricket baby over here recently Silly point पता है तुम्हें क्या होता है? Silly point. नहीं, silly point. यहाँ बेवकूफ बन के खड़े रहो, है ना? अच्छा ये होता। Silly point. हाँ, तो जैसे बेवकूफ के जैसे तुम अभी बैठे हुए हो हमारे बीच, मतलब क्रिकेट में ऐसी जगह होती है। silly point. जैसे अभी हमारे silly You are point. sitting at a silly point. ओके मैन, करेक्ट। Silly point. बट मुझे एक बात बताओ, आप जैसे मतलब आपका फेवरेट मैच कौन सा है ऑफ ऑल टाइम? अरे वो छोड़, तुम्हें शॉर्ट लेग पता है? शॉर्ट लेग क्या होता है? शॉर्ट लेग पता है ना मुझे। छोटी टांग, एक टांग पे खड़े रहो, दैट्स शॉर्ट लेग। फॉर रियल ये रूल है हाँ, शॉर्ट लेग। भाई, चूते मत बना मेरा, ठीक है? ठीक है, मुझे नहीं पता, पर ऐसे नहीं बोल सकते आप। इतना मैं सोच रहा हूँ यार, एक पैर पे बंदा, एक पैर पे कैसे खेल रहा है बंदा? तो बस कर रहा है। For those of you who know the rules, I mean they know that we were just kidding. We were just pulling legs. भाई Yeah, that was that. मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि ना एम्पायर को सजा देता होगा कि वो तेरे एक पैर पे बैठ के टीचर थोड़ी ऐसे सजा देता होगा यार। नहीं यार, मतलब भाई हो सकता है कि हाँ, मतलब ऐसे कोई येलो कार्ड वगैरह देता हो उसको, और भाई I mean उसके there are बाद penalties like if Okay. 5 लोग अलाउड हैं सर्कल में खड़े होने के लिए और 6 लोग खड़े हैं, तो उसमें पेनल्टी होगी कि आपको लास्ट ओवर में प्लेयर अंदर लाना पड़ेगा। वैसी पेनल्टी होती है। अच्छा होता है ऐसा? पर एक टांग पे खड़े होना कोई रूल नहीं है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, what is the best, you know, what is your favorite match that you have watched of cricket of all time? कि आपको लगता है कि अब अगर आप अभी बोर हो रहे हो एंड कोई स्पोर्ट्स लीग नहीं चल रही है आपके लिए, आप तो वैसे भी देखते हो वैसे, पर लेट्स से कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, पर आपको लगता है ये मैच मैं बार-बार देख सकता हूँ, रिप्ले देखनी है। हाँ रिप्ले देख सकते देखो, काफी लोग बोलेंगे कि यार इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था वो कोहली ने जो जिसमें कोहली ने, ठीक है, एंड में जिताया था, 8 में हो 28 सकता है। हाँ, 8 में 28 वो हो सकता है। काफी बोलेंगे जो इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल था वो भी हो सकता है, जब सूर्य कुमार ने हाँ, मैच एंड में पलट लिया था। बट माय फेवरेट इज गोइंग टू बी अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2000? लेट मी गेस, जब मैक्सवेल ने 200 मारे थे करेक्ट, 297 चीज कर रहे थे वो। और वो अच्छा बंदा एक टांग पे खड़ा था। एब्सोल्युटली, वो तो बंदा हैमस्ट्रिंग से उसको स्ट्रेन, उसको शॉट लग मिला था वो शॉट लेता। उसको शॉट लग मिला था। उसको शॉट लेग नहीं मिला था, हिज हैमस्ट्रिंग वाज पुल्ड अच्छा, और So, वो इंजर्ड होने लेट मी गिव यू द सिचुएशन उसमें हुआ क्या था। हाँ हाँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 297 रन चेज कर रही है, ठीक है, और उनके 91 और 92 पे 7 विकेट आउट हो गई है। ओके, अब उनको 200 रन और चाहिए, 200 रन और चाहिए, और उनके पास सिर्फ 3 विकेटें पड़ी है, और जो सारे बॉलर्स हैं, क्योंकि बैट्समैन खत्म हो गए, सिर्फ एक मैक्सवेल बचा हुआ है, हाँ। और वो अच्छा। और सिर्फ 15 या 20 रन पे खेल रहा है। मतलब अफगानिस्तान जश्न मना रहे हैं भाई, अब कहाँ रन बनेगा। यू कांट बिलीव, वो बंदा अकेला 200 रन बना के गया, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, हाँ अकेला 200, और जो उसके दूसरी साइड पे पैट कमिंस था, उस हाँ, बंदे और उसने 60 बॉलें खेल के हाँ। सिर्फ 12 रन बनाए, और बाकी उसने 200 सारे बनाए। मैक्सवेल ने बनाए। वो बंदा एक टांग पे खड़े होके मार रहा है, ये टेढ़े मार रहा है, मेढ़े मार ग्लेन रहा है, मैक्सवेल मुझे सब छक्के मार रहा है यार। मुझे ग्लेन मैक्सवेल याद है, तो वो उसमें खेलता था पंजाब किंग्स 11 पंजाब में। वो ऑलमोस्ट 3-4 फ्रेंचाइजीज से खेला। हाँ, बट भाई मुझे वो याद है कि एक सीजन जब उसने दाढ़ी बड़ी रखी हुई थी या बाल लंबे रखे हुए थे, आई डोंट रिमेंबर, बट भाई उसमें बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, मुझे याद है वो इतना। कहाँ के बाल बड़े हैं? सर के तो नहीं दिखे मैंने। दाढ़ी रखी अच्छा, हुई दाढ़ी थी के बाल बोल रहा होगा। हाँ, मैं बहुत छोटा था, मुझे इतना याद है, पर हाँ भाई ग्लेन मैक्सवेल की भाई मतलब कमेंट्री तो सुनता था मैं। लेकिन जो मैच आप बात कर रहे हो ना, उस मैच का आई एम रियली फैन, यस आई एग्री टू दैट। कौन से टाइम की बात है, कौन से साल की? ये अभी पिछले वर्ल्ड कप की मैच है, 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया में हुआ था, जो अभी हाँ। जिसमें इंडिया फाइनल में हार गया। हाँ, नहीं, भाई साहब, सेमीफाइनल है। हाँ, सेमीफाइनल हारी थी, हाँ। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। 200 रन, पर बदला ले लिया भाई, बदला ले लिया। बदला अभी ले लिया। हाँ। वो भी एक टांग पे खड़े होके, उसको हैमस्ट्रिंग पुल थी सेकंड लेग में। 200 रन मार दिए उसने। 200 वो रन भाई। भाग नहीं सकता था, वो इसलिए नहीं भाग ही नहीं रहा था, वो खड़े खड़े छह बॉलें खुद खेलता था। बस चौका छक्का हाँ, बस चौके छक्के मारता था और खुद वहां पे खड़ा रहता था। उनके भाग ही 200 नहीं रन। सकता था। यस 200 रन मारे उसने,
और बॉलर भी अच्छे हैं भाई। और जीत गया अफगानिस्तान से। राशिद खान, मतलब वो राशिद खान वही ना जो आज तक 18 साल का है। रहमान, नवीन उल हक, फजल फारूकी सारे थे। राशिद खान वही है ना जो 18 साल का है। था भाई, था भाई, उसने वो बड़ा है डेब्यू किया था 18 वो साल में। बड़ा है लेकिन बड़ा हो रहा है वो धीरे धीरे हमारी तरह। जैसे तू बड़ा हो रहा है ना, शॉर्ट पर यार मुझे इतना याद है- लेग बैक पर मुझे इतना याद है क्यों ना से फाइन लेग में आएगा। फिर पॉइंट में ही आएगा। ओ भाई क्या पर बोल ये रहे हो? पॉइंट में नहीं आ पाएगा ओ भाई क्या बोल रहे हो? मुझे भी लग रहा है पॉइंट पे नहीं आ पाएगा। मेरी बात सुनो, पर जब राशिद खान ने डेब्यू करता मुझे पता है वो कहते थे ही इज ओनली 18 इयर्स ओल्ड, पर वो लगता 34 का था भाई। पठान है यार, पठान ब्लड है। तो मिलेगा भी पठानों से। नहीं भाई यार, पठानों से मिलने का मुझे कुछ और। मीट राशिद खान। राशिद खान ठीक है भाई। So that- एवर इफ आई एवर गेट अ चांस टू मीट, कोई नहीं मिला दूंगा। बाकी मुझे अफगानिस्तान जाने का कोई शौक नहीं है। आई गेस अश्विन की 7th या 6th सेंचुरी थी, राइट? आई थिंक या। ओवरऑल में हाँ, और उसके ऊपर से इस सीजन का किसी भी बैट्समैन का इंडिया से सबसे हाईएस्ट एवरेज उसका चल रहा है अभी। हाँ, तो इससे पहले भी अभी वहां पर वो हुई थी, आपको पता है? विराट कोहली से भी ज्यादा। कौन सी? इस सीजन चला नहीं ना। TNPL हुई थी अभी, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, उसमें अपनी टीम से ये ओपनिंग करता था और हर मैच में रन बनाया है इसने भाई, 60 70 80 हर मैच में। TNPL भी होती है। फाइनल भी जितवाया है इसने तब। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने सुना है कि अश्विन ने शुरू ही एज अ ओपनर करना चाहा था, बट बट बैट्समैन नहीं था, बाद में वो बॉलर। वो तो बैट्समैन ही आया था। अच्छा, अब एक बॉलर की बात कर रहे हो जो अभी कहते हैं क्रिकेट उसमें बैटिंग में सबसे आगे चल रहा है। हाँ ग्लेन भाई, मैक्सवेल ने भी एज अ बॉलर शुरू किया था। नहीं नहीं, रुक जाओ 2 मिनट, लेट्स गेट बैक टू इट। तो आपने बोला प्रोसेस। तो आपने बोला कि एक बंदा मतलब इंडियन क्रिकेट में से अभी तक मतलब वो अश्विन है जो वो अभी कहते हैं हाईएस्ट, वो कहते हैं स्कोर बना रखा है उसने अभी की जो लीग चल रही है उसके अंदर हाँ, टेस्ट मैच में। टेस्ट में, एंड ही इज अ बॉलर। हाँ, 8वें I mean, नंबर पे आता है खेलने। मोर ओवर ऑलराउंडर, मतलब ज्यादा डोमिनेंट वो बॉलिंग करता है बट बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। बहन की है, ऐसा भी होता है। तो अच्छा ठीक है यार, मैंने कभी कभी देखा है विराट कोहली को बॉलिंग भी करते हुए। बहुत रेयरली देखा होगा, मैं इतना नहीं कराता वो फ्रीक्वेंटली, बट यस ही डज। मुझे लगता था वो क्रिकेट वो खेलता है, पर मुझे रिसेंटली मेरे एक वही दोस्त ने खेलता है, एज इन अकेला खेलता है। मतलब बैट्समैन है वो, पर मुझे रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने दिखाया, क्या मैं कहा भाई ये बॉलिंग क्यों कर रहा है। मैंने एक मैच देखा था भाई, भाई मैं हूँ तगड़ा तगड़ा आरसीबी हेटर हूँ मैं, चाहे मैं क्रिकेट ना देखता हूँ। आरसीबी ठीक है? हेटर। हाँ ठीक है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट भाई, आई फकिंग हेट दैट फकिंग टीम, क्योंकि उसके इतने सारे वो हैं भाई फैंस हैं और वो कभी नहीं जीतते भाई, वो इतना डिसअपॉइंट करते हैं भाई अपनी टीम को। आई नो यू लव आरसीबी और आई नो आप भी करते ही होगे। I'm not a fan of RCB guys, to be honest. I'm a fan of Kings 11 Punjab, but to use the word hate, I'm little surprised because let me complete my thought. He said that they didn't win anything until now, but there are, I mean, I guess 5 to 6 franchises जिन्होंने अब तक नहीं जीता है. But why is so much hate for RCB? बिकॉज आरसीबी इज द मोस्ट फेमस वन आउट ऑफ दोस, ठीक है। तो वो प्लस पॉइंट। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेजर कौन कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, और अपनी मुंबई होगी, ठीक है, मुंबई इंडियंस होगी, और तीसरे पे आरसीबी होगी, राइट। कोलकाता भी तो है। कोलकाता इज बिग, बट कहते हैं मेन कौन कौन सी है, मतलब मेजरली किनके मैचेस ही होते हैं? मैचेस तो सबके होते हैं, पर फाइनल्स में मेजरली कौन पहुंचता है? चेन्नई। कोलकाता। कोलकाता तो अब जीती है, तो पहुंच गई थी वो। अरे भाई ट्रॉफीज है उनके पास 3 पड़ी हुई। तो 3 है, और सबसे ज्यादा किसके पास है? चेन्नई। फिर तो चेन्नई, और उसके बाद चेन्नई, उसके बाद और उसके बाद तीसरी उसके बाद KKR ही आती है। हाँ तो केकेआर आते हैं, पर मैं कह रहा हूँ इन पॉपुलैरिटी आरसीबी इज वे बिगर भाई देन भाई केकेआर। है ही आप है प्रशंसा कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं, पहले वो बता दीजिए। वही मतलब एज एन आउटसाइडर मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है आरसीबी मतलब 3rd नंबर पे आती है, चाहे जो मर्जी हो। So you think they are overrated? ओवररेटेड एज। और भाई दूसरी बात मुझे लगता है भाई वो इतने डिसअपॉइंट कैसे कर सकता है भाई कोई? उसका पसंद है तेरे को। अरे नहीं यार, वो इतने डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हैं भाई? अभी बोलना पड़ता है इसलिए, मतलब क्या मतलब भाई क्या वो चाहता है? नहीं, मुझे अनुष्का अच्छी नहीं लगती, पर कहता है मुझे ही नहीं समझ आता। सॉरी मैं यहाँ पर ब्लास्फेमी भी कर रहा हूँ, मुझे पता है, पर मुझे समझ नहीं आता एक टीम अपने कहते कैसे इतना कहते वो कर सकती है भाई डिसअपॉइंट अपने कहते फैंस को। भाई वो मुझे एक लिजिट मुझे मैच याद है, मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत बड़ा फैन है आरसीबी का, राइट। और भाई मतलब उसने मेरे साथ बेट लगाई थी कि ना भाई मैंने उसको लिजिट, और भगवान कसम ये बात सच है, जिस कहते हैं उसमें उन्होंने 50 रन भी नहीं बनाए थे ना, याद है आपको? हाँ, है ना, 49 बनाए थे। भगवान कसम खा के बोल रहा मैं, मेरे भाई के साथ मेरी शर्त लगी थी, मैं कहा भाई ये 50 से ऊपर नहीं बनाएंगे रन। शायद मेरी दुनिया का मैं तो सबसे अच्छा तुक्का था मेरी दुनिया का वो। And how much ठीक है। you won? I just won 2 मट्ठीस for it because मेरा छोटा भाई था वो, ठीक है। और भाई बट जस्ट यू नो थिंक अबाउट इट, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा लगाता उसके ऊपर कि ये साले 50 से ज्यादा रन नहीं बनाएंगे,
और वो सच में वाली फीलिंग आई होगी इसको। और वो सच में 50 पे, वो 49 पे ऑल आउट हो गए, ऑल आउट हो गए थे। हाँ, ऑल आउट हो गए थे भाई 50 पे वो। और फिर उस दिन के बाद तो भाई मुझे लगा यार भाई क्या ही टीम है, मतलब यार व्हाई पीपल लव दिस टीम सो मच। अरे बहुत अच्छी टीम है भाई, ये वही टीम है जो सबसे बड़ा रन भी बनाती है और सबसे जल्दी आउट भी जाती है। Let me compare it to the other league. जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मुझे लगता है अब मतलब अभी बहुत ज्यादा अच्छी मुझे एनालॉजी मिली इसके लिए, वो है ग्लास, वो है गन, ग्लास गन है भाई वो बेसिकली। वो ये फायर तो करते हैं पर वो खुद भी टूट जाते हैं मुझे लगता है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। I'm a critic now यार। How old or how back you remember कि कोई other team have won the Champions League apart from Real Madrid or Manchester City recently? I have never seen a whole match of football and this guy is asking me। मुझे 2-3 टीम्स के बारे में पता है भाई। Let me tell you, there are a lot of रोनाल्डो teams. रोनाल्डिनो भी नहीं पता। हाँ। और क्या- So yeah, guys, you must have seen that meme where that girlfriend washes the t-shirt I'm gonna cut it off। रोनाल्डिनो की टी-शर्ट I'm gonna cut it off। गर्लफ्रेंड राइट, और उसमें दैट गर्ल सेज क्या कर रहे हो यार, रोनाल्डो एक ही तो होता है, एंड ही वाज लाइक हाँ एक ही तो होता है, एंड आई वाज लाफिंग माय हेड आउट एंड आई वाज थिंकिंग मैन हाउ कैन वन पर्सन भाई मुझे लगा उसको उसके फैंस प्यार से रोनाल्डिनो बुलाते हैं, ठीक है। एंड ही वाज लाइक प्यार से उसको रोनाल्डिनो बताते हैं, वैसे उसका नाम रोनाल्डो होगा। देन आई वाज लाइक तुझे तो फिर आर9 का पता ही नहीं होगा, देयर वाज अनदर रोनाल्डो बिफोर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई मुझे नहीं पता था, मैं क्या रोनाल्डो उसकी, भाई मुझे लगा वो सही तो बोल रही है, मुझे लग रहा होगा शायद वो ऑफेंड इसलिए हो रहा है कि उसको वो क्यों बोल रही है उसको रोनाल्डिनो, वो फैन है उसको रोनाल्डो, वो रोनाल्डिनो उसको वो बोलेगा। सो आई थॉट ये लॉजिक है उसका, बट आई डिडंट नो भाई रोनाल्डिनो एक अलग वो है भाई, फुटबॉलर है। हाँ मुझे भाई 3-4 ही पता भाई, रोनाल्डो, मेसी, बेकहम और अपना रूनी, ठीक है, बस दीज गाइज आर द ओनली वंस जिनके बारे में मैं जानता हूँ। बेकहम के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ बिकॉज There was a मतलब movie. देयर वाज अ मूवी अबाउट हिम, और कहते हैं ऑल्सो कि मैंने उसको बाहर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है, ठीक है, मतलब बिसाइड्स अपना ये हो गया फुटबॉल हो गया। एंड रूनी को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि एक लौता मैच जो आज तक मैंने फुटबॉल का देखा था वाज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसमें उस टाइम पे रूनी खेलता था एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट हिम, तो मुझे रूनी का ही पता है। रूनी वाज अ ग्रेट प्लेयर यार। हाँ। आई थिंक अभी रिसेंटली मुझे उसकी फीड में, अपनी फीड में भी पता नहीं कैसे फुटबॉल मुझे आजकल आने लगे, बिकॉज आई मतलब दीस पीपल टॉक अबाउट फुटबॉल इसके फोन ने एक्चुअली हमें बात करते हुए हाँ सुन लिया होगा ऑफ कोर्स। तो आई थिंक अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड वो खेलने भी आया था रूनी, नाउ ही हैज बीन बीफ्ड अप, है ना, वो उनका चैरिटी मैच हुआ था। यस, चैरिटी मैच हो गया जो भी है, तो ही वाज प्लेइंग इन इट, और भाई वो लगता नहीं बिल्कुल, पहचाना नहीं जाता ना उससे। ही इज पुट अप अ लॉट ऑफ वेट। हाँ वो भाई कितना स्किनी से होता था ना अपने टाइम पे वो, बट यस। और ये भाई साहब रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन है, बहुत ही ज्यादा बड़े, मतलब इतने बड़े फैन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डिनो के नहीं, रोनाल्डो के पास फैन है, ठीक है। सो बेसिकली भाई इनके घर में पोस्टर्स हैं भाई इसके, और भाई ये हर एक गोल देखते हैं उसका लेजेंड बैठ के कि इसने एक गोल कर दिया। दैट तो इज रॉन्ग गाइस, आई डोंट वॉच हिज एवरी गोल, आई वॉच हिज एवरी मैच। हाँ इनके एवरी गोल एज इन, जैसे अभी इनको पता है मैच चल रहा था उनका, तो भाई ये पौड़ियों से उतर रहे थे, पौड़ियाँ गाइस हम पंजाबी में कहते हैं स्टेयर्स को पौड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, और सीढ़ियों को पौड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पौड़ियों से उतर रहे थे, और भाई ये वाज लाइक भाई रोनाल्डो ने एक और गोल कर दिया, उसके 902 गोल हो गए हैं। And I was like, 98 to go. and I was like, I couldn't give a less fucks about that. But yes, he was really happy about it. Then we had a very stupid argument about football itself, जबकि मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। So he was like, भाई अच्छा फिर तो तुझे क्या लगता है कि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है? Even though मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मेसी कोई बड़ा प्लेयर है। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे मेसी की साइड लेनी चाहिए। मैंने कहा वो बड़ा प्लेयर है, उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। Then he was like, क्या बोला था भाई आपने? It's not, we are not talking about teams, we are talking about individuals right now. हाँ तो इंडिविजुअल के उसने कब उठाया है? रोनाल्डो ने कभी उठाया? फीफा का कब उठाया? कब उठाया? फीफा वर्ल्ड कप उठाया क्या उसने कभी? Okay guys, let me clarify myself first. I really respect Messi, I love his play. But thing is कि जो वर्ल्ड कप है ना, वो एक टीम स्पोर्ट है, right? एक टीम ने मिलके जीता है वो। If you ask me कि अर्जेंटीना की टीम कैसी है, तो फुटबॉल क्या है? तो फुटबॉल क्या है? Is it a team play और कहता है इंडिविजुअल प्ले? It is a team play. फिर लेकिन अभी इंडिविजुअल की बात चल रही है ना, यू सेड कि मैंने मेसी का नाम लिया और रोनाल्डो की बात चल रही थी, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट रोनाल्डो। Although they both are great players, but personally I prefer Ronaldo first. What do you think? What is your say in this? My favorite is Drogba.
Yeah, Drogba was a great player in Chelsea. I remember. कौन है ड्रॉगबा? My all-time favorite. Although his career was a little ruined, so that was a little controversy over there. कैसे? But let's not go there. I mean, so that was the moment where Drogba, dropped his career. But he was Is that guy जो बार बार कहते आता है और फिर कहते हैं उसके कुछ कहते हैं वो पहली शायद ऐसा भी हुआ था कि वो यार वो कौन सा है कहते फुटबॉलर जो कहता है हाउस अरेस्ट पे था उसको 6 बजे से पहले घर जाना पड़ता था एंड देन ही यूज्ड टू कम एंड प्ले देयर वाज दिस गाय बहुत मतलब उसने वो छोड़ भी दिया था उसने I फुटबॉल think you are mixing up two players, but the way you're talking, I think you're talking about Lamine Yamal. I guess you were talking about the labor laws in Europe, so he has to, he can't play the penalties. नहीं वो बच्चा नहीं वो नहीं दैट गाय नहीं वो एक बंदा था ही यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव उसका डाइवोर्स वगैरह भी हो रखा था और वो पता नहीं किसी क्लब के लिए खेलता था फेमस क्लब के लिए और उनके क्लब ने पुलिस वालों से परमिशन ले रखी थी इवन दो वो सर्व कर रहे थे कहते हैं होम प्रिजन सर्व कर रहे थे वो पर फुटबॉल उनकी जो लीग है उन्होंने परमिशन ले रखी थी कि 6 बजे से पहले ये घर पे आ जाएगा ठीक है तो वो 6 बजे वो कोशिश करते थे कि सारे मैचेस वो जल्दी जल्दी रख पाए so that he can go home और कहते हैं वो घर पे जा सके 6 बजे I mean, I didn't expect I'll say this, but I don't know about this, and you do, so please वो explain. गली के मैच की बात कर रहा हूँ. अरे नहीं ये हो सकता है। गली के कहती 6 बजे से पहले. मम्मी ने घर पे बुला लिया, 6 फिर बजे वापस से पहले. चलते हैं। अरे नहीं भाई लेजिट बात है मैंने भाई इसमें देखा था उसको एक वीडियो थी इसके बारे में उस बारे में देख रहा था तो आई थॉट कि वही बंदा है वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और फिर उसके बाद उसने कुछ अब्यूज़ वगैरह का सीन भी था उसका बट वो अच्छा क्रिकेटर था Most वो aggressive, क्रिकेटर से कह रहा फुटबॉलर था most aggressive, not particularly aggressive, but I would say that attitude जिस फुटबॉलर में था, maybe because of what he has achieved, was Zlatan Ibrahimovic. But I think उसका aura भी वैसा था. He was used to play like that. So he was really like into like I'm the best footballer and I'm the best I can do. आई थिंक मतलब आई डोंट लाइक इट माई सेल्फ बट मतलब एक बात मैंने देखी है when you are so high because you already know that you are putting so much efforts doing something or achieving something like we can take an example of Ronaldo himself or Virat Kohli का भी even though I really don't like both of these people but मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है और मतलब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मतलब मैं नहीं पसंद करता वो बात अलग है बट मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि why they are so arrogant ठीक है because they can be arrogant because they have achieved everything ठीक है I think not they can be arrogant, but I think उसी mentality की वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं कि किसी और को वो समझते नहीं थे, वो चाहते कि खुद पे काम करो और खुद सबसे बेस्ट बनो. हाँ कि मैं ही हूँ जो हूँ ठीक है एंड इवन दो ठीक है मतलब हम्बल नहीं हो पर एट द सेम टाइम भाई दे आर द ग्रेटेस्ट एट द एंड ऑफ द डे ठीक है अब तो मतलब वही बात होगी जैसे ऐसे तो कभी अलेक्जेंडर भी नहीं रहा होगा हम्बल ठीक है बट ही वन द होल वर्ल्ड ठीक है ऐसे तो Muhammad Ali, हाँ Mike Tyson, all these greats, हाँ. I mean, they were really into themselves कि we are the greatest. चंगेज खान ठीक है डू यू रियली थिंक चंगेज खान हम्बल रहा होगा डू यू रियली थिंक You went a whole another Nee, I'm talking- paradigm of topic, but no I'm talking पकड़ वाली सारे. No, I'm talking about arrogant मतलब कहते हैं personalities जो उन्होंने बहुत कुछ किया है जिंदगी में ठीक है तो if we talk about चंगेज खान भाई do you really think वो कभी humble रहा होगा अपनी जिंदगी में so I think guys, I don't know anything about this topic, so I won't say anything. Let's continue. So चंगेज खान as you guys know इसको गैंगेज खान भी बोलते हैं अमेरिकन्स ठीक है बट आई थिंक मतलब when it comes to inspiration मतलब मुझे अगर लेनी हो कि भाई कि to be a man of an hour ठीक है भाई बहन चू मतलब कि भाई यही है असली बंदा To be or not to be. या टू बी और नॉट टू बी आई थिंक भाई चंगेज खान से अच्छी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकती फॉर अ मैन टू सी हिमसेल्फ कि हाँ भाई यार क्या मैं अचीव कर सकता हूँ और क्या मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं ठीक है मैं उसकी बुक पढ़ रहा था somebody wrote about him द ग्रेट चंगेज खान करके बुक है शायद आई फॉरगॉट अबाउट द नेम ऑफ द बुक बट ये मैंने 6 महीने पहले पढ़ी थी एंड दैट चेंज्ड अ लॉट अबाउट माई पर्सनैलिटी डेली लाइफ के ऊपर बेसिकली मैं बताना चाहूँगा बिकॉज पहले ना मैं काम से बहुत भागता था टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था यार किसी ने मुझे टास्क दे दिया है या मैं बहुत टाइम लूंगा उसे करने में या मैं उसको मना कर दूंगा राइट बट नाउ डेज काम कर लेता है. हाँ सबके काम कर लेता हूँ मैं बेसिकली अगर मतलब इफ आई लेट्स से दीज गाइज Or सबके काम कर लेता है. सो दीज गाइज आर माई सीनियर्स है ठीक है सो अगर मुझे मतलब कहते हैं कभी बोलेंगे कहते हैं मतलब बेसिकली दीज गाइज आर ट्रेनर्स अभी तक मैं नहीं हूँ ठीक है सो on the way. on the way guys so even though let's say these guys are busy and matlab they cannot take their batches
तो आई ट्राई टू पुट माई एफर्ट्स इनटू दैट, है ना. तो मुझे वो नहीं मना करना अगर मेरे मैनेजर या होने वाले मैनेजर कुछ ही बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि गाइस अगर वो देख रहे हैं तो जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि ट्यूसडे को जब तेरा पहला दिन होगा काम करने का, क्योंकि आई एम ऑन लीव ऑन मंडे, तो तू सुबह लॉग इन करियो इवन दो मेरी शिफ्ट रात की है, बट आई एम गोना डू इट, ठीक है. बिकॉज मैं मना नहीं करूँगा, बिकॉज आफ्टर रीडिंग दैट बुक आई रियलाइज कि इफ यू आर यू नो सेइंग नो टू स्टफ, दैट मीन्स यू आर लूजिंग टू दैट स्टफ. बेसिकली आप हार मान रहे हो, ठीक है. एंड यू नो दैट अप्लाइज एवरीवेयर आई गेस. मेरा नहीं मन करता भाई रोज रोज रील्स बनाने का, ठीक है. यू नो बिकॉज मुझे सोना होता है घर आने के बाद, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 9-10 आवर्स यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम भाई, ठीक है. तुम सो सकते हो, तुम खा सकते हो, एंड यू नो फाइंडिंग दैट टाइम उसके अंदर भी, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक द सेम इज विद यू एज वेल. I think I won't say the same because he put a lot of efforts in his videos. I'm still learning it. But yes, जैसे मैं try करता हूँ, so I know कि उसमें कितना time लगता है. A simple overlay videos might take hours if you are learning as a beginner. Yes, and the thing is, I used to edit videos before back in the day, but जब free time होता था, ठीक है, and after that I stopped doing it, but अब I started again, और now even I have bought a subscription model for a editing software just to make sure कि हाँ मैं सब सारे मेरे पास tools हो, to try on, और कहते हैं Filmora guys, if you are watching, please हाँ please sponsor us please guys, ठीक है. तो now I started doing all of that, and I'm finding it out very hard कि जो लोग actually there are a lot of creators अंकुश भाई जो काम भी करते हैं, they are managing their families as well, ठीक है, and they are doing content creation as well. So I used to think कि यार easy तो होता है यार, मतलब you just have to record stuff, ठीक है, give it some time, या 15-20 मिनट में edit होता होगा, and they used to just upload this stuff, and I used to think भाई यार कितना आसान है यार, I can do this as well. Yes, and I'm finding it really really hard to do. Now he's on the other side of the world, and Yes. and top of that, we were talking about cricket. So coming back to that, what do you think about the coming BGT to be honest? border Gavaskar Trophy. I think we will see new Rishabh Pant stories there, controversies this time. Though we don't have Tim Payne this time. Let me see if we are still recording. But I think we will get someone new face there who will be. I'm really amazed with that. It has been Deliver. 50 minutes. Yes. So on top of that, मैंने अभी ऋषभ पंत का एक वो देखा. He was in the video of तन्मय भट्ट, एक content creator है तन्मय भट्ट, तो उसकी वीडियो में, and he was talking about, he knows about it, so he's excited about it. देखा मैं तन्मय भट्ट की रिएक्शन वीडियोस देखता हूँ, और उन्हें ऋषभ पंत को बुला रखा So था. ऋषभ पंत was there, और he was talking about, तन्मय asked him कि इस बार who will you say to कि बेबी सिटर लाए हो कि नहीं. He was like कि हमारे खुद के प्लेयर्स के इतने बेबी हो रखे हैं कि उनको ही देख लूंगा, मुझे उनके देखने की जरूरत नहीं है. So really excited about that कि BGT कैसा जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैं बस ये पुट करना चाहता हूँ, इस बार तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए, बस यही दुआ है भगवान से. टेस्ट की अलग से वर्ल्ड कप होता है. Correct. It has started recently, like last 2 or 3 years I think. This is But third time. 2 बार हम फाइनल में पहुंच चुके हैं और 2 बार हार चुके हैं. So we are भाई मतलब हर एक फॉर्मेट में जीत जाओगे अगर तुम उसमें वर्ल्ड कप जीती है तो, राइट. अभी ODI में हम चैंपियंस नहीं है. होपफुली 2027 में हम बन जाएं. चैंपियन तो थे 2011 में. 11 के बाद भाई, it has been how long? Years and years, 13 years. It's not sure, right? And वो भी ऑस्ट्रेलिया से बार हार के. बार उनसे हारते हैं. Mainly Australia. Travis Head अकेला ही बेचारा मारता. Travis Head is giving us a hard time. If you are watching, please don't do this. वो मतलब इतने टाइम से हराया जा रहा है इंडिया को, सच में. Yes. मुझे लगता था शायद इस बार ही उतना हावी हो रखा है वो, बिकॉज अभी मीम्स बन रहे थे उसके, जहाँ तक मुझे याद है. कोई ना. धीरे सीख जाओगे. And top of that, I would really like to thank Ankush bhai over here for today. Thank you. Really Thank happy you. that you Thank you for came me from a having busy me. schedule. Thank you I mean, very much, although man. it's his own house, but still giving it time. It meant a So lot. yes, thank you very much, भाई साहब. ठीक है. Bye bye guys. See you guys, and we will try to bring another guest, but if not, we Will be back there, here. show our faces and talk about our daily lives. Sayonara guys. Arigatou gozaimasu. Peace out. Enjoy. Dance with me. Back and forth.